जय भगवान। CITU के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं इंदर सिंह पठाना। ये जो हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन है जो होस्ट है इस कॉन्फ्रेंस के, उसके स्टेट प्रेसिडेंट। तो अब करीम साहब कुछ रखेंगे इस पर। We are holding our national conference here, All India Road Transport Workers Federation. It's a pioneer organization of road transport workers in our country. Several agitations and struggles were conducted by this organization for the betterment of life of the road transport workers. See, the road transport workers are the most suffering working people. They are doing a very crucial job. Transport is lifeline of our country, not only the passenger transport. You see our food grains, fertilizer, minerals, all factory products, vegetable fruits, all are transporting through this road transport mode. These work are done by these workers. But what is the fate of these poor workers? They have no permanent employment. Only in some state transport undertakings there are permanent employment and their salary structure like that. Haryana Roadways may be there, state of Kerala State Road Transport Corporation there may be there, only in that. But the vast majority of the transport is in private sector. Not when you go, some small operators are operating their vehicles in a big way in this sector. Take the example of auto rickshaw. This is a self-employment mode. Some youngsters getting money as loan from banks and purchasing an auto rickshaw, and they are doing that work. They have no minimum wage. They have no pension, they have no social security, they have no retirement pension. As long as they are healthy, they are doing their work. When the price of petroleum products is going up, they are losing. There is no scheme to compensate them. That is the position of road transport workers in this country. You take the example of truck workers. From Delhi, they are taking load and transporting to Kerala, from north to south. What sufferings they are? What is their wages? What is their living conditions? What is their service condition? There is no mentioning in the laws. There is an act, Motor Transport Workers Act. That act is, majority of the workers are unorganized. They are not in a position to pressurize the government, state governments and central governments to implement the laws which are in the country for the welfare of the public. So our motto is, our aim is to unite all the road transport workers under a banner. And there may be other organizations also. Unite with them also and put a strong struggle in front of government for the betterment of the service condition of these workers. That is the deliberation which is going on in this conference. ये जो 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन जो शुरू हुआ है हिसार में रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उसका उद्घाटन किया है। मुख्यतः उन्होंने जो बातचीत कही है वो एक तो कि पूरे देश के अंदर ये फेडरेशन के अंडर लाखों मजदूर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में है, उसके अंदर काम करते हैं। ये उसका 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और मुख्य जो एजेंडा है इस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि खासकर 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है वो सभी क्षेत्रों के अंदर उन्हें एक प्रकार से निजी हाथों में, और वो ये कह रही है कि बिजनेस करना जो है वो सरकार का काम नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। इसलिए तमाम क्षेत्रों में वो उसको निजी हाथों में सौंप रहे हैं। दूसरी बात ये कि खासकर ये जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है, मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है 2019 के अंदर सरकार ने, और उसका पूरा जो उसकी पूरी जो लाइन है वो इस आधार पर है कि जितना भी सरकारी क्षेत्र के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको प्राइवेट कर दिया जाए। और आप देखेंगे पूरे देश के अंदर बहुत कम स्टेट ऐसे बचे हैं जहां सरकारी क्षेत्र के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट बचा हो। सेकंड, इन्होंने कहा है कि जो सरकार ने पूरा का पूरा रोड्स का जो ढांचा है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया है। और जब से ये सरकार आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के वो कम हो रहे हैं। मतलब आप देखेंगे जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी तब $120 प्रति बैरल जो है ये खर्च था
पेट्रोलियम पदार्थों का अगर देखें, क्रूड ऑयल इसको बोलते हैं, और आज वो जो है वो बिल्कुल 30 और $35 प्रति बैरल आ चुका है। लेकिन अब रेट देखेंगे तो जिस समय बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी वो 65 रुपए पेट्रोल का रेट था, आज वो बढ़कर कितना हो गया हम देख सकते हैं। और उसका असर जो है खासकर परिवहन क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर जो है ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है, चाहे वो खाद्य का मामला हो, चाहे वो सामान का इधर उधर करना हो, वेजिटेबल्स का मामला हो, और इसका असर सीधे महंगाई आम लोगों को भुगतना पड़ता है। और जो इस क्षेत्र के अंदर जो लोग काम करते हैं लाखों की संख्या में, उनके वेज भी वो कम होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो मिनिमम वेज तक जो है वो मजदूरों को और ड्राइवर जो उसको लेके जाते हैं उनको किसी प्रकार की वो सुविधा नहीं है, उसको लेके मुख्यतः काम कर रहे हैं। और जो पहले उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा कुल मिला के जो लक्ष्य ये है कि किसी तरीके से ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसको बचाया जाए, और जो परिवहन क्षेत्र के अंदर जो भी मजदूर या कर्मचारी काम कर रहे हैं उन हितों की रक्षा की जाए। उसके बारे में यह मंथन होगा और 3 दिन लगातार बहस होने के बाद आगामी आंदोलन की एक बड़ी रूपरेखा तय की जाएगी। जब ये आजादी हुई ना देश की, आजादी के बाद में ये वेलफेयर स्टेट था, जो कंसेप्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वेलफेयर स्टेट में जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराने का काम देश की सरकार का है। और इसी उद्देश्य के साथ ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, बिजली है, रोड है, सब कुछ जो है ये खड़ा हुआ। लेकिन आज पूरी तरीके से उसको बदल दिया गया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रॉफिट के लिए नहीं था, बिजली का ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट के लिए नहीं था, हेल्थ एजुकेशन ये जो सारी चीजें हैं। लेकिन ये नवोदारीकरण की जब नीतियां 1991-90 से शुरू हुई, अब इनको पूरी तरीके से मतलब प्रॉफिट के हिसाब से देखना शुरू कर दिया है। तो जहां तक सुधार की बात है, सुधार आप मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि हरियाणा रोडवेज की जो हमारी सर्विस है पूरे देश में एक बार नहीं कई बार इसको अवार्ड मिला है। टाइम पे सर्विस देने का 19 बार टाइम पे सर्विस देने का और सुरक्षित सर्विस देने का, और इससे बेटर कोई सर्विस दे नहीं सकता। इसके बावजूद भी निजीकरण क्यों किया जा रहा है? किसकी डिमांड है? आप गांव में पूछ करके देखो, हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं वो रेजोल्यूशन दे रही हैं कि हमारे गांव से रोडवेज की बस चले, बावजूद इसके रोडवेज की बस क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब ये है कि जो सरकार बैठी हुई है वो वोट लेने के लिए जनता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो उन्हीं लोगों का भला सोचती है, जनता का भला नहीं सोचती। इसलिए हम ये करें 14,000 बसें आनी चाहिए। 14,000 बसें आएंगी तो लगभग 70,000 से ज्यादा नौकरी मिलेगी। बेरोजगारों को नौकरी मिली नहीं मिली, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। तो इसलिए जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उन सबको संगठित करके इन सर्विसेज को बचाने का तब बच सकती हैं। अकेले एम्प्लॉइज से नहीं बच सकती। एम्प्लॉइज अदर देन एम्प्लॉइज सब मिल करके लड़ेंगे तो इन सर्विसेज को हम बचाएंगे। अदरवाइज सरकार ने तय कर लिया कि इन सब हम वो कह रहे हैं निजीकरण करेंगे, हम करेंगे बेचेंगे। दूसरी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू आज देश में, और 60 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं केंद्र में और राज्यों में। सरकार क्यों नहीं भर रही? सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए अब पक्की भर्ती नहीं होंगी। ये नहीं कह रहे वो पैसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इन पॉलिसीज में हर साल 10 लाख करोड़ से ज्यादा जो कारपोरेट टैक्स है उसको माफ किया जा रहा है। ये अरबों रुपया जो बैंकों से ले रखा है वो सब भाग के वो रिटर्न हो नहीं रहा, एनपीए बढ़ रहा है। जब सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा आता है और जिसने टैक्स देना था, मोटा टैक्स देना था, उसको तुमने माफ कर दिया, अब वो माफ कर दिया। दूसरी तरफ बैंकों से जो पैसा लिया है वो वापस आ नहीं रहा है, तो पैसा कहां से आए? इसलिए फिर ये जो डीजल का, पेट्रोल का, रसोई गैस का, इसका कोरोना काल में ही 28 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा इससे हासिल किया सरकार ने। इसलिए जो बोलते हैं ना भाई और बहनों, गरीबों के चिंता में हम तो बड़े साहब सोते नहीं है। बड़े साहब गरीबों की चिंता में नहीं सोते हैं। बड़े साहब को चिंता है अडानी की, अंबानी की। उनकी अडानी की संपत्ति 16 से अब तक 22 में अगर हम देखें तो 350 गुना तो अडानी की बढ़ गई है, 750 गुना उसकी बढ़ी है, प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई है। जहां नौकरी जारी है, बेरोजगारी है, असमानता है,
लोगों को रोजी रोटी भारी पड़ रही है, उनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई है, वो इसलिए बढ़ गई है कि उनके पक्ष में पॉलिसी है और इन सारे संसाधनों को उनके हवाले किया जा रहा है। तो इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को साथ आना पड़ेगा, जब ये पब्लिक सर्विसेज बचेंगी, रोजगार बचेगा। अदरवाइज सरकार तो पूरी तरीके से अपना काम तमाम कर रही है। इसके साथ ही जो कम्युनल एजेंडा लेकर के आ रहे हैं, जाति का, धर्म का, आप देखेंगे चर्चा आज देश में क्या है, बेरोजगारी की है, महंगाई की है। चर्चा ये है कि शिवलिंग है या फवारा है, ये क्या इशू है, लेकिन उसी पर चर्चा सारी की सारी केंद्रित करी जा रही है। कोई हनुमान चालीसा कहीं पड़ेगा, कोई कहीं पड़ेगा, ये क्या हो रहा है। मतलब असली जो रियल इशू हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए ये जो खाम खा के जो बनावटी इशू हैं इनको पैदा किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पे 24 घंटे क्या काम चल रहा है, शाम को आप देखेंगे नेशनल मीडिया पर क्या चल रहा है, मतलब यही चल रहा है। तो इसलिए समझ में आएगा, यूथ की समझ में नहीं आया कि जब अग्निवीर मतलब आया तो उसकी समझ में आ गया। और एक बात हम आपको आपके मार्फत से पूछ रहे हैं सरकार से, सरकार कह रही है कि हम 4 साल के बाद जब वो रिटायर होके आएंगे हम उनको नौकरी देंगे। साहब कैसे नौकरी दोगे आप? जो रिटायर फौजी हैं उन्होंने अप्लाई कर रखा है, 100 ने अप्लाई किया तो 1.6 को नौकरी मिली है। साहब पहले उनको तो दे दो आप। और इनको कैसे नौकरी दोगे, हम बताए ना जरा कैसे नौकरी देंगे। रिजर्वेशन करना पड़ेगा ना, पहले से ही रिजर्वेशन फुल है, कैसे दोगे नौकरी। तो आपने भाषण दिया 1 रैंक 1 पेंशन, अब ना रैंक है ना पेंशन है। पुरानी पेंशन की भाले की मांग उठा रहे हैं आप, तो साहब पुरानी पेंशन ले रहे हैं, 23 साल के बाद नौकरी करके जाए कर्मचारी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेबर कोड्स को खत्म कर दिया, डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर हमला हो रहा है। तो कोई साधारण परिस्थितियां नहीं है। तो 16 से 18 3 दिन हम यहाँ मंथन करेंगे और फिर निश्चित तौर से इन तमाम मुद्दों को लेकर के रणनीति का ऐलान ऐसे किया जाएगा। लड़ाई मैदान में देखने को मिलेगी, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। किन किन का योगदान यहाँ पर देखने को मिल सकता है? बात करें महिलाओं की तो महिलाएं भी देश का सिंगल एकमात्र सारे सेक्टर में काम करने वाला बड़ा संगठन है। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब तरीके के लोग, तो सब मिलकर के ही लड़ेंगे और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। जो नैरेटिव सेट सरकार करना चाहती है कि रियल इशू पीछे चले जाएं और दूसरे इशू मतलब उस पर आ जाए फ्रंट पे, तो उनको निश्चित तौर से हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझाना पड़ेगा, तब पब्लिक सेक्टर बचेगा। क्या किसानों का क्यों नहीं, यहाँ किसानों के प्रतिनिधि आपके सामने बैठे हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इस सम्मेलन के आयोजन में बहुत बड़ी मदद किसानों ने की है। तो किसान है, मजदूर है, जो CITO हमारा संगठन है, किसान सभा है, नौजवान सभा है, स्टूडेंटों ST हमारी SFI है, ये सारे महिला समिति है, सब मिलकर के इसको कर रहे हैं। बाकी सब क्या आप प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ युवा को नौकरी भी दिलवाएंगे? निश्चित तौर से नौकरी के लिए तो लड़ रहे हैं। मैंने रखा 60 लाख पद खाली पड़े हैं। अब यूथ जो है वो तिलक लगा करके, गमछा डाल करके जो नारे लगा रहे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ नौकरी मिलेगी, वहां तो जेल में जा सकते हैं। लेकिन नौकरी के लिए एजुटेशन कहाँ है? एक संगठित रूप से हम यूथ को जागरूक कर रहे हैं और यूथ निश्चित तौर से हमारे साथ आएगा और यूथ के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सर आप यूथ को कैसे मोटिवेट करेंगे? जगह जगह पर नारे लगवाकर या फिर उनको मोटिव दे करने का तो बाद का काम है। पहले उनको ये समझाएंगे कि जो आज हो रहा है उसमें नौकरी नहीं मिलनी है, उसमें तो दूसरा कुछ होगा। उनको पहले हम उनके अंदर विश्वास पैदा करेंगे, आपको रोजगार मिल सकता है। रोजगार मिलेगा तो संगठन के साथ आएंगे, संगठन के साथ आएंगे तो लड़ेंगे, नारे भी लगेंगे, नौकरी मिलेगी। आम जनता के लिए आम जनता के लिए यही संदेश है कि पब्लिक सर्विसेज को बचाने के लिए, रोडवेज को बचाने के लिए जो हमारा आंदोलन का निर्माण हम करना चाहते हैं, बगैर जनता के सहयोग पे नहीं हो सकता। जनता से हमारा आग्रह है कि इस पब्लिक सर्विसेज को बचाने के लिए हमारे साथ आएं और तब ये पब्लिक सर्विसेज बचेंगे। शुक्रिया। तो आपका इस बारे में क्या? निश्चित तौर से हम महिलाओं के लिए स्पेशल बस चलाने की मांग हमारी थी। जी सर। बसों के अंदर महिलाओं के लिए सीट भी आरक्षित कराया जाए और उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। सर और जैसा कि महिलाओं के बजाय पुरुष कौन कैसे देखने को मिलते हैं? नहीं, और वो बसेस बजाय महिलाओं को शहर में जगह पर पहुंचाने के वो जा रही है लंबे रूट पर, जैसे भिवानी, हांसी, ऐसे ऐसे रोडों पर जा रही है। ऐसा है कि ये जो सिटी सर्विस है ना, जी सर, महिलाओं के लिए भी इसमें विश्वास पैदा करना होता है।
कि 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद बस आएगी, तब निश्चित तौर से बस भरेंगी। मगर ठीक है, सर बसें लेकिन रोड पुरुष पर नहीं महीनों होंगी के लिए है तो महिलाएं ही उसमें आनी चाहिए। तो सर उल्लंघन हो रहा है ना। जी मैं बताता हूँ हालांकि कि 1966 में हरियाणा बना और 4500 बसों का हमारे सैंक्शन फ्लीट वो रिजर्व किया गया कि कम से कम न्यूनतम 4500 बसें चाहिए, और हरियाणा बनने से अब तक 4500 बसें पूरी नहीं कर पाई सरकार। वर्तमान सरकार ने उस बेड़े को बढ़ा के 5300 कर दिया, अभी फिलहाल हुआ है, लेकिन 4500 पूरा नहीं कर पाए, अब 5300 कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कागज में नजर आता है। यदि 5300 व्यवहार में हो, महिलाओं के लिए अलग बस की व्यवस्था हो और समय सुनिश्चित हो, तो जाहिर सी बात है लोगों को बेटर सर्विस में मिलेगी, और समय की प्रतिबद्धता यदि होगी तो लोग इंतजार भी करेंगे और बस में बैठेंगे। तो सर आपने जो ये बस चलाई है इसकी टाइमिंग क्या रखी है? क्योंकि ये देखिए पूरे स्टेट में 150 बसें हैं, और उन 150 में से मतलब यहाँ की आप हिसार की बात कर रहे हो 9 है। अब 9 में से 6 बसें कोविड के टाइम पे एम्बुलेंस, उनकी सीट निकाल के एम्बुलेंस की सर्विस उनको उनसे दी है, तो फिर महिलाओं के लिए बस काम है। तो ये सरकार की पॉलिसी है ना, सरकार की पॉलिसी है, इसलिए समय पर पाबंदता नहीं है। यदि प्रतिबद्धता सरकार की हो, पॉलिसी सही हो, तो अलग टाइम पे अलग अलग रूट पे लोकल बस अलग चले, हाईवे पे अलग चले, लॉन्ग रूट की अलग चले, तो जाहिर सी बात है सर पर अब तो कोरोना काल भी बसेस खड़ी हैं सर। तो कुछ जीएम से पूछो बहन जी, भाई क्यों कहेंगे? आपने हमारे संज्ञान में डाला है, जीएम से बात करेंगे प्रयास। How can he say like that? Next 30-40 years are the era of the BJP. But he declared like that. It is a small mercy that he did not talk about BJP rule for the next 1000 years. He can consider like that. However, 3 or 4 decades of the BJP era would be sufficient to transform India into a one-party Hindutva dictatorship. Amit Shah also posted Operation Capture. Obviously, stemmed from the success in toppling the MPA government in Maharashtra. Maharashtra Vikas Aghadi government was toppled by the BJP. And installing a BJP control Maharashtra. It is no more confined to bribery of MLAs and hosting using huge amount of money. Apart from such conventional methods, the full weight of the state and its institutions and the agencies were brought into play to break the Shiva Sena and the government in the state. ED was used, central agencies was used. In Maharashtra, the role of the governor in Maharashtra was more blatant. The governor Bhagat Singh Kochiyari, some litigation going on regarding some rules. In the name of a litigation, he was stalling the election of speaker in the assembly during the MPA government. But when he violated, comrades, in this juncture, the most sufferers in this country are the working people. All the legal rights are taken away. In the name of making India, in the name of doing business easy, BJP government has amended 29 existing labor laws for the election. It was not referred for a discussion in parliamentary standing committee. Provisions are blatantly violated. That is what is going on today. The right to strike is a statutory right. Supreme Court has upheld its right except in exceptional cases, that of one case, Venkarajan versus Tamil Nadu state government, that is exceptional. But generally, Supreme Court has upheld these principles.
Workers being an exploited class, or enforcement machinery for labor regulations. Comrades, the end result of labor law amendments are contractual employment. Formal employment will be reduced. Everything will go to the hands of contractors, contract labor, casual labor, temporary labor, daily wage labor. Among 40-50 crores of the total workforce, 90 to 93% of the working people are working in informal sector, in unorganized sector, including you, transport workers. Only in some STUs there are permanent workers. There may be some service conditions. But what is the condition of STUs, state transport undertakings? Most state transport undertakings are facing serious crisis due to the policies of the government, due to the policies against the public sector. That is the reason, not the reason of any workers' issue. Public sector are undermined. Lorry transport workers, auto rickshaw, light motor vehicles, passenger transport, goods carriers, whatever it may be. What is the working condition of those workers? In a fair manner. Regarding the wages, it is not ensured there is no a fair wage manual. See, it will aggravate further after this labor codes. Denied of neglected and the spirit that generations have built that is what is happening in this new era all over the world. The majority we want the legacy of mankind are deprived of their livelihood. Only a movement of the world to toiling masses join with the common people, working class and peasantry and other struggle. Comrades, we are here to deliberate on the issues, the prevailing condition of the transport workers, and to